ڈونلڈ ٹرمپ ایران سے جنگ بندی میں توسیع کے معاہدے پر فیصلہ نہ کر سکے، وائٹ ہاؤس سچویشن روم میں اہم اجلاس بے نتیجہ ختم، امریکی اخبار کا دعویٰ۔ کہا امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق ایران کے معاملے پر صدر ٹرمپ کی قیادت میں 2 گھنٹے تک اجلاس جاری رہا۔ ایران معاہدے پر ٹرمپ کا حتمی فیصلہ مؤخر ہو گیا۔ وائٹ ہاؤس حکام کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ صرف اسی معاہدے کو قبول کریں گے جو امریکی شرائط پر پورا اترے۔ امریکہ کے مفاد اور ٹرمپ کی شرائط کے مطابق ہی ایران ڈیل ممکن ہے۔ ضرورت پڑی تو ایران کے خلاف فوجی آپریشن دوبارہ شروع کیا جا سکتا ہے۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسٹ کا کہنا ہے کہ ایران جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا۔ ایران سے جنگ دوبارہ چھڑنے کی صورت میں امریکی فوج پوری طرح تیار ہے۔ امریکی اسلحہ ذخائر وافر ہیں۔ ایران کے ساتھ کوئی بھی معاہدہ ایک اچھا معاہدہ ہوگا۔ عالمی سلامتی کے لیے امریکہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرتا رہے گا۔ امریکہ اب امیر ممالک کے دفاعی اخراجات کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ چین سمیت کوئی ملک خطے پر بالادستی قائم نہیں کر سکتا۔ بحر الکاہل میں کسی بھی بالادستی سے طاقت کا توازن بگڑ جائے گا۔ چین کو خطے میں امریکہ کی پوزیشن کا احترام کرنا ہوگا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کی بحری ناکہ بندی ختم کرنے کا اعلان کیا تھا اور کہا تھا کہ اب جہاز آبنائے ہرمز سے گھر واپسی کا عمل شروع کر سکتے ہیں۔ علاقائی کشیدگی کے خاتمے کے لیے باعزت فریم ورک کے خواہاں ہیں ایرانی صدر مسعود پزشکیان اور امیر قطر تمیم بن حمد ال ثانی کی ٹیلی فونک گفتگو۔ کہا ایران نے ہمیشہ مذاکرات اور سفارتکاری کو موقع دیا ہے۔ امریکہ کو بھی حقیقی سیاسی عزم دکھانا ہوگا اور عالمی قوانین کی پاسداری کرنا ہوگی۔ پائیدار امن کے لیے باہمی اعتماد اور سنجیدہ مذاکرات ناگزیر ہیں۔ امریکہ کے ساتھ ابھی حتمی معاہدے تک نہیں پہنچے۔ ہم ایرانی عوام کے مفادات اور حقوق کی بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ ایران کسی قسم کے دباؤ میں نہیں آئے گا۔ مغرب کو ایران کے حوالے سے اپنا رویہ بدلنا ہوگا۔ ہم نے 47 سال پہلے ہی حکم کی زبان کو الوداع کہہ دیا تھا۔ امریکی ناکہ بندی ایک مکمل غیر قانونی اقدام تھا۔ دیکھنا ہوگا کہ کیا امریکی انتظامیہ اپنی باتوں پر عمل بھی کرتی ہے۔ ایران کا چین اور روس کو آبنہ ہرمز پر خصوصی سہولتیں دینے کا اعلان۔ ایران کی قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے کہا آبنہ ہرمز سے گزرنے والے روسی اور چینی جہازوں کے ساتھ خصوصی تعاون کیا جائے گا۔ تہران اپنے قریبی شراکت دار ممالک کے ساتھ ترجیحی تعاون جاری رکھے گا۔ روس اور چین کو آبنہ ہرمز سے متعلق معاملات میں خصوصی اور سازگار شرائط حاصل رہیں گی۔ امریکہ نے ایران کے $1 ارب مالیت کے کرپٹو اثاثے ضبط کر لیے۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسن نے کہا کہ یہ کارروائی ایران کے خلاف شروع کی گئی معاشی مہم کا حصہ ہے۔ امریکی وزیر خزانہ سے آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی ختم کرنے سے متعلق سوال کیا گیا تو بولے جو کچھ بھی ہٹایا جائے گا وہ آہستہ آہستہ ہٹایا جائے گا۔ سوال کیا گیا کہ کیا ایران سے معاہدے کے قریب ہیں؟ جواب دیا کہ پہلی بار ایران نے جوہری موضوع پر بات کرنے پر آمادگی دکھائی ہے۔ عمان نے آبنائے ہرمز پر ٹیکس نہ لگانے کی یقین دہانی کرائی۔ ایران کی مدد پر عمان کے خلاف پابندیاں لگیں گی۔ فلسطینی ریاست کے قیام تک پاکستان ابراہیمی معاہدے پر کوئی لچک نہیں دکھائے گا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا دو ٹوک موقف۔ واشنگٹن میں گفتگو کرتے ہوئے اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان کا موقف 1967 سے پہلے کی سرحدوں اور القدس کو دارالحکومت بنانے پر مبنی فلسطینی ریاست کے حق میں ہے۔ پاکستان ایران امریکہ مذاکرات میں بھی مثبت کردار ادا کر رہا ہے۔ عالمی سطح پر پاکستان کی نئی شناخت ابھری ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیریوں کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حق خود ارادیت ملنا چاہیے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی ملاقات۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنما کا پاک امریکہ دو طرفہ تعلقات کے مثبت رجحان پر اطمینان کا اظہار۔ امریکی وزیر خارجہ کا مشرق وسطی میں امن کے فروغ کے لیے پاکستان کا شکریہ۔ مارکو روبیو نے ایکس پر لکھا کہ پاکستانی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ملاقات اچھی رہی۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا۔ دونوں ممالک کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے باہمی تعاون مزید مضبوط بنانا ضروری ہے۔ ہم نے ایک بامعنی شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔
Police Academy has a distinguished history of producing officers who have gone on to serve Pakistan with courage and distinction. During your training, you have been equipped not only with physical skills, but also with principles that define discipline, integrity, impartiality, respect of law, and commitment to public service. The most important lesson is the authority vested in a police officer must always be exercised with wisdom, fairness, and compassion. पुलिस अफसरों को जज्बे और लगन के साथ मुल्क व कौम की खिदमत करनी है। पुलिस के शोहदा हमारा फ़ख्र हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नेशनल पुलिस एकेडमी की तकरीब से खिताब। कहा, तरबियत मुकम्मल करने वाले DSPs को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपने इंतहाई पेशावराना तरबियत का अमल मुकम्मल किया। जराइम पेशा अनासर से निमटने के लिए सिंध पुलिस और दीगर इदारों के साथ मिलकर काम कर रही है। अमन व अमान बरकरार रखने में सिंध पुलिस की बहादुरी, अज़्म और लगन गैर मुतसलसल है। कराची में गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी, क़यास आराइयों के बायस सूरत हाल संगीन होने का खदशा। सिंध में गंदम के ज़खायर में कमी से आटे की कीमतें बढ़ने का इम्कान। महकमे खुराक सिंध की रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल 10 लाख मेट्रिक टन गंदम खरीदारी का हदफ मुकम्मल ना हो सका। ओपन मार्केट में ज़्यादा कीमतों और खैबर पख्तूनख्वा समेत दीगर इलाकों में तरसील के बायस सरकारी खरीदारी मुतासिर। ज़ख़ीरा अंदोज़ों और फ्लावर मिल्स की जानिब से कीमतों में इजाफे की तवक्को पर गंदम ज़ख़ीरा करने का इंकशाफ। स्ट्रेटेजिक ज़खायर, मार्केट इस्तेहकाम और आवाम को सस्ता आटा फराहम करने में मुश्किलात का खदशा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश और यालाबारी। बारिश से बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। गुलबर्ग, घड़ी, शाहू, एबट रोड, रिगल चौक, लक्ष्मी चौक, मुस्लिम टाउन, इलामा इकबाल टाउन, मॉडल टाउन, माल रोड, धर्मपुरा, जेल रोड, कलमा चौक, मजंग चुंगी और फिरोजपुर रोड समेत मुतअद्दिद इलाकों में बारिश रिकॉर्ड। लेस्को ज़राए के मुताबिक 100 से ज़ायद फीडर स्ट्रिप कर गए। हुकाम ने बारिश रुकने के बाद बिजली की बहाली के काम का आगाज़ कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सूबे भर में तूफ़ानी बारिशों के दौरान तमाम मुतल्लिका इदारों को हाई अलर्ट रहने का हुक्म। बारिश के पानी की फौरी निकासी यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब का बरसाती नालों और ड्रेन की मुसलसल मॉनिटरिंग का हुक्म। कहा, वासा ऑपरेशंस की मुसलसल निगरानी और मौसर मॉनिटरिंग यकीनी बनाई जाए। अर्बन एरियाज में बारिश का पानी खड़ा ना होने दिया जाए। इरीगेशन डिपार्टमेंट को नहरों में पानी के बहाव की मुसलसल मॉनिटरिंग जारी रखने की हिदायत। पंजाब हुकूमत ने ईद सफाई ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल किया है। सुथरा पंजाब के वर्कर्स ने ईद के 3 रोज़ में 3,60,000 टन नालाइशें ठिकाने लगाईं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि ईद सफाई ऑपरेशन में 1,84,000 वर्कर्स ने हिस्सा लिया। सुथरा पंजाब की 60,000 गाड़ियाँ भी ऑपरेशन में शामिल थीं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने सफाई ऑपरेशन की लम्हा बलम्हा मॉनिटरिंग की। पंजाब की 4,000 सड़कों को अर्के गुलाब से धोया गया। पंजाब में सफाई ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल होने पर शहरियों ने भी मुसर्रत का इजहार किया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी अवाम ने नाकाफी करार दे दी। कहा, गुज़िश्ता महीनों में बार बार होने वाले बड़े इजाफे के मुकाबले में ये कमी हकीकी रिलीफ फराहम नहीं करती। उधर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 6% कमी का ऐलान कर दिया। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल में 22 रुपए कमी की थी। ओगरा की सिंध और बलूचिस्तान के सरहदी इलाकों में कार्रवाइयां। लाखों लीटर गैर कानूनी जखीरा शुदा पेट्रोल और डीजल जब्त कर लिया गया। ओगरा हुकाम के मुताबिक लाखों लीटर पेट्रोल और डीजल हब के मकाम पर गैर कानूनी जखीरा किया गया था। निजी कंपनी मैक्स के ऑयल डिपो में भी गैर कानूनी तौर पर काम कर रहा था। ऑयल डिपो के पास ओगरा का लाइसेंस और वजारत दिफा का NOC नहीं था। ओगरा की इन्फोर्समेंट टीम ने ऑयल डिपो सील कर दिया। जखीरा शुदा पेट्रोल डीजल कब्जे में लेकर ज़िला इंतजामिया के हवाले कर दिया। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुमकिना डील के असरात। गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी का रुझान। 100 इंडेक्स कारोबारी हफ्ते में 6,118 पॉइंट्स इजाफे से 1,73,962 रुपये पर बंद। हफ्तावार दौरान इंडेक्स 3,944 पॉइंट्स के बंद में रहा।
बुलंद तरीन सतह 1,74,106 जबकि कम तरीन सतह 1,70,161 रिकॉर्ड की गई। एक हफ्ते में 1.06 अरब शेयर्स के सौदे हुए। मार्केट कैपिटलाइजेशन। पंजाब हुकूमत ने इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 में नई दफ़ा शामिल करने की मंजूरी दे दी। खुसूसी सिक्योरिटी केसेस के लिए अलहदा अदालती तरीक़ेकार मुतारिफ कराया जाएगा। तरमीम के तहत मखसूस दहशतगर्दी मुकदमात को खुसूसी सिक्योरिटी केस करार दिया जा सकेगा। खुसूसी सिक्योरिटी केसेस में लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ATC जजेस में खुसूसी जज नामजद करेंगे। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब 5 प्रोसिक्यूटर्स पर मुश्तमिल पैनल फराहम करेंगे। खुसूसी सिक्योरिटी केसेस में गवाहों को असल नाम के बजाय मखसूस शनाख्ती कोड्स दिए जाएंगे। खुसूसी सिक्योरिटी केसेस में जजेस और प्रोसिक्यूटर्स के नाम सरकारी गैजेट में शाया नहीं किए जाएंगे। दहशतगर्दी मुकदमात का मुकम्मल अदालती रिकॉर्ड सील करके लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास महफूज रखा जाएगा। नामजद अथॉरिटी हुकूमत के साथ राब्ता और अमलदारी की निगरानी करेगी। जनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक काउंसिल के 61वें इजलास के दौरान भारतीय आलमी दहशतगर्दी की रिपोर्ट पेश। बाकू इनिशिएटिव ग्रुप और सिख फेडरेशन इंटरनेशनल ने भारत की मुबैना सरहद पार कार्रवाइयों पर तफसीली रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक सिख कारकुनों के खिलाफ भारतीय सरगर्मियों सिर्फ कनाडा, अमेरिका और बरतानिया तक महदूद नहीं बल्कि जर्मनी तक फैल चुकी हैं। भारतीय हुकाम खालिस्तानी रहनुमाओं के खानदानों को भारत में हिरासत कर रहे हैं। जर्मन अदालतें भारतीय खुफिया इदारों के लिए काम करने वाले मुतादिद अफराद को सजाएं सुना चुकी। पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करने की कोशिशों में भारत को बदतरीन नाकामी। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान आज वाशिंगटन, बीजिंग, तेहरान और रियाद के साथ राब्ते में है। पाकिस्तान इलाकाई मामलात पर असरअंदाज होने वाला हम फरीक बन गया। 2025 के पाक भारत कशीदगी के दौरान पाकिस्तान ने आलमी बयानिए की जंग में बेहतरी हासिल की। अल जज़ीरा रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप 30 से ज़ायद मरतबा पाक भारत जंग का जिक्र कर चुके, जबकि नई दिल्ली मुसलसल इसकी तरदीद करता रहा। जंगबंदी के मामले पर मोदी और ट्रंप के दरमियान इख्तलाफात ने वाशिंगटन और नई दिल्ली के ताल्लुकात में दरार पैदा की। ट्रंप फील्ड मार्शल को गैर मामूली शख्सियत करार देता रहा, जबकि पाक चीन नाकाबिल शिकस्त शराकतदारी खित्ते की नई हकीकत बन चुकी है। SIFC की कामयाब सहूलतकारी 5 साल से बंद जामशोरो जॉइंट वेंचर लिमिटेड का LPG प्रोसेसिंग प्लांट बहाल। $25 करोड़ से ज़ायद मालियत का कौमी मंसूबा दोबारा फाल हो गया। प्लांट की बंदिश से मुल्क 3,17,000 टन मकामी LPG और 94 अरब रुपए के मुआशी फवायद से महरूम रहा। बहाली से सालाना तकरीबन $20 करोड़ ज़र मुबादला की बचत होगी। 5,000 अफराद के लिए रोजगार के मौके पैदा होंगे। तवानाई के शोबे में खुद इन्हिसारी को फरोग मिलेगा। फितनाल हिंदुस्तान BLA से मुंसलिक दहशतगर्द शहनाज बलोच से अहल खाना की इजहार लाताल्लुकी। तुरबत में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वालिदा ने कहा कि तकरीबन 12 बरस से शहनाज बलोच से कोई राब्ता नहीं। ख़ानदान को उनकी किसी शिद्दत पसंद सरगर्मी या कलदम तंजीम से वाबस्तगी का इल्म नहीं। रिश्तेदारों ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ख़ानदान का शहनाज बलोच के किसी कौल, फेल या सरगर्मी से कोई ताल्लुक़ नहीं। हम कानून और रियासती इदारों का एहतराम करते हैं। मोदी सरकार की बदतरीन पॉलिसी से भारतीय मईशत दबाव का शिकार। इलाकाई कशीदगी के असरात भी नुमाया। $4 ट्रिलियन मईशत के दावों पर सवालात उठने लगे। भारतीय जरीदे फ्रंटलाइन की रिपोर्ट के मुताबिक सनत, तिजारती खसारे और सरमायाकारी में कमी के बाइस मुआशी बहरान का बोझ मजदूर तबके पर मुंतकिल हुआ। सब्सिडी और सरकारी अखराजात में कमी के साथ साथ रुपए की कदर में गिरावट और तिजारती खसारे ने मईशत पर मजीद दबाव डाला। अफगानिस्तान में अदालती और कानूनी निज़ाम पर संगीन सवालात। साबिक़ अटॉर्नी जनरल फरीद हामिदी कहते हैं तालिबान हुकूमत ने इख्तियारात की अलहदगी ख़त्म करके अदालती निज़ाम के बुनियादी ढांचे को मुतासर किया। ख़वातीन प्रोसिक्यूटर्स को बरतरफ किए जाने और कानूनी अमल में शफाफियत के फुकदान पर इज़हार तशवीश। कैद ख़वातीन की तादाद में इजाफे और प्रोसिक्यूटर्स वान के अहल खाना के कत्ल के वाक़यात पर भी खदशात का इज़हार। माहिरीन के मुताबिक अदालती और इंसानी हकूक़ के निज़ाम को दरपेश चैलेंजेस अफगानिस्तान में कानून की हुक्मरानी पर असरअंदाज हो रहे हैं।
مالاکنڈ کے علاقے ہریان کوٹ میں گھریلو تنازع پر گھر میں فائرنگ، ملزم نے فائرنگ کر کے بھائی اور بھابھی کو قتل کر دیا۔ لیوی ذرائع کے مطابق ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق فائرنگ کا واقعہ بھائیوں کے درمیان زبانی تکرار کے بعد پیش آیا۔